میرے والد سوئے ہوئے ہیں، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، میرے والد سوئے ہوئے ہیں، نیند کر رہے ہیں، آرام ہے، شاید کہ یہ چابی خزانے کی والد کے پاس تھی یا یہ پیسے درہم و دینار والد کی جیب کے اندر تھے، یہ نوجوان کہتا ہے آپ یہاں رکے جب تک میرے والد بیدار نہیں ہوگے، اس وقت تک آپ انتظار کرتے رہیں۔ یہ بیچنے والا شخص کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، چلتی اپنے پیسے لے اور مجھ سے یہ ہیرا لے کے جا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، آپ رک جائیں، میرے والد آرام کر رہے ہیں، میں ان کے آرام کے اندر خلل پیدا نہیں کر سکتا، آپ رکے، میں آپ کو 70,000 کی بجائے 80,000 اس کی قیمت دوں گا، لیکن آپ میری شرط پہ رکے۔ یہ نوجوان جو بیچنے والا ہے یہ کہتا ہے نہیں، ابھی جا کے یہ پیسے اور چیزیں آپ لے کے آؤ، میں آپ کو 70,000 کی بجائے 60,000 میں دوں گا، آپ ابھی لے کے آؤ۔ جیسے یہ شخص کہتا گیا یہ قیمت بڑھاتا گیا، رکنے کی، وہ جانے کی قیمت کم کرتا گیا، بات یہاں تک پہنچی یہ بیچنے والا کہتا ہے ابھی پیسے لے کیا، میں تجھے 70,000 کی بجائے 60,000 کی بجائے تمہیں میں 30,000 میں دوں گا، ابھی پیسے لے کیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے نہیں، آپ رکے، میں آپ کو 70-80 کی بجائے 1,00,000 روپے موجودہ کرنسی کے مطابق تمہیں دوں گا، آپ رکے۔ اتنا قیمت بڑھا کے لگا دی اس نے، لیکن یہ بات پے تکمیل تک نہیں پہنچی، پے تکمیل تک بات نہیں پہنچی۔ یہ بیچنے والا شخص غصے میں آ کے یہ چلا گیا، ہیرا اسی کے پاس رہا، اس نے خریدا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کا والد آرام کر رہا تھا، والد کے آرام کے اندر اس نے خلل پیدا کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا اور یہ اپنی من پسند کو چھوڑ دیا، والد کے آرام کے اندر خلل پیدا نہیں کیا اور اتنا بھاری بھرکم رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا، رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن والد کے آرام کے اندر خلل نہیں پیدا کیا، بندہ یہ چلا گیا۔ آخر کار یہ وقت آیا، یہی والد واپس اپنی بات پہ آتے ہیں، یہی نوجوان ہے، وہ گائے لینے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس بندے کی نیکی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اتنا ان کی خدمت، ادب و احترام، حسن سلوک کرنے والا ہے، ان کی نیند کا بھی خیال کرتا ہے، ان کے آرام کا بھی خیال کرتا ہے، ان کے سکون کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ سکون کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنا پسند ہے، یہ نیکی اتنا پسند ہے، اتنا عظیم نیکی لگی، اس نے اپنی من پسند چھوڑ دی، لیکن والدین کے آرام کے اندر خلل پیدا نہیں کیا۔ نیکی پر تعاون کرنا، نیکی کے ساتھ مدد کرنا، وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا بعد میں ہے، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ نیکی کرنا بعد میں ہے۔ سب سے پہلے نیکی پر مدد کرنا، تعاون اپنے جسم کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر اب نیکی پر تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے محسنین کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ مع المحسنین، نیکی کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالی ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میرا عنوان شاید سمجھ آ گیا ہوگا، دنیا کے اندر انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کا فائدہ بعض اوقات انسان کو دنیا کے اندر ملتا ہے، آخرت کے اندر تو نیکی کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالی بعض اوقات نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں، اور اتنا وسیع دے دیتے ہیں، اتنا زیادہ دے دیتے ہیں۔ اب مثالیں سمجھے، اللہ تعالیٰ انسان کو خوش کر دیتے ہیں، نیکی کا بدلہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نیکی بندہ کرے اس کی آخرت اچھی ہوگی، آخرت تو اچھی ہوگی، انسان کی دنیا بھی نیکی کی وجہ سے اچھی ہو سکتی ہے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر جو رہ رہے ہیں
اس کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا؟ ہاں ہونی چاہیے۔ وہ کس وجہ سے ہوگی؟ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، اور اتنا اچھی کر دیتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ آپ مثالیں سمجھے، وقت کے اندر انشاءاللہ بات ختم کریں گے، باتیں طویل ہیں لیکن مختصر بات کریں گے تاکہ وہ بات سمجھ آ جائے اور دل کے اندر بیٹھ جائے، ذہن کے اندر وہ بالکل حفظ ہو جائے۔ آپ غور رکھیں بس۔ پہلی بات اور پہلی دلیل، نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں اشارہ کروں گا، باتیں آپ نے پہلے کئی بار سنی ہوگی، چند ایک جو نہیں ہوگی الا ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہے، آپ کے اوپر نبوت نازل ہو رہی ہے، آپ غار حرا سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، انی خشیت النفس، مجھے اپنے نفس کا خوف ہے، ڈر ہے کہیں میری جان نکل نہ جائے، یعنی اس قدر آپ پریشان ہیں۔ باقی آپ نے سنا ہوا ہے، صرف اشارتاً مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انی خشیت النفس، مجھے میری جان، میرے جسم کے اوپر مجھے خوف طاری ہو رہا ہے کہیں میری جان نکل نہ جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے کیا فرماتی ہیں؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، نبوت کا آغاز ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں؟ واللہ کاللہ لا یخزیہ کاللہ ابدا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز آپ کے اوپر نازل نہیں کریں گے جو آپ کا جسم مبارک برداشت نہ کر سکے۔ یہ کلا واللہ لا یخزی کلا ابدا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، چار نیکیاں گنواتی ہیں۔ آج سے پہلے آپ کی یہ نیکیاں گنی جا رہی ہے، نبوت تو ابھی مل رہی ہے، نبوت کا آغاز ہوا ہے، یہ جو نیکیاں گنوائی ہے، یہ جو عمل گنوائے ہیں، ان عمل کی خبر دی ہے، یہ نبوت کے پہلے کی ہے، نبوت تو ابھی مل رہی ہے۔ پہلی وحی یہی ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، نبوت سے پہلے آپ یہ عمل کرنے والے تھے۔ وتکسب المعدوم، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں حق کے اوپر، یہ نبوت کی پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ ہے نیکی، دنیا کے اندر نیکی کا بدلہ مل رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ جا رہے ہیں، پہلی ہجرت ہے، حبشہ جا رہے ہیں، راستے میں ابن دغنہ کفار کا سردار ملتا ہے، کفار کا، اس کی آواز اور کم کریں، کفار کا سردار ملتا ہے ابن دغنہ۔ وہ جا کے کیا کہتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کی قوم والے، مکے والے مکہ کے اندر نہیں رہنے دے رہے، اس لیے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا رہا ہو۔ تو ابن دغنہ نے کیا کہا؟ واللہ لا یخرج ولا یخرج، اللہ کی قسم ہے آپ جیسی شخصیت کو کسی علاقے سے نہ نکالا جائے، آپ جیسی شخصیت کسی علاقے سے خود نہ جائے۔ واللہ لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسی شخصیت یہاں سے نہ جائے۔ کیوں نہ جائے؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم
वतुईनु अला नवाइबिल हक, ये वही सिफात है जो सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी वो सिफात आपकी पहली वही के बाद और आपकी नबूवत से पहले के अमाल गिनवाए थे। ये वही सिफात है जो इब्ने दगना कुफार का सरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की सिफात नेकियां गिनवा रहा है। वापस ले आया, नेकी का बदला ये मिला। इब्ने दगना अपनी अमान में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को वापस मक्का में ले आया था। अल्लाह ताला बासा औक़ात नेकी का बदला दुनिया के अंदर भी दे देते हैं, इतना देते हैं कि बंदा खुश हो जाता है। मारूफ हदीस है सही बुखारी की। तीसरी बात सही बुखारी की, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद, वो 3 लोग जो बनी इसराइल के चलते हुए एक गार में दाखिल हो गए थे। बारिश आई, आंधी और तूफान आई, गार के ऊपर से एक पत्थर गिरा, गार के मुंह के आगे जाके वो रुका, गार का मुंह बंद हो गया। ये तीनों के तीनों अंदर है और बाहर देख रही है, रोशनी भी नजर नहीं आ रही, बड़ी तकलीफ और मुसीबत और परेशानी में है। अब धक्का दे रही है, जोर लगा रही है, ये पत्थर इतना भारी और भरकम है, गार के मुंह से हटने के लिए तैयार ही नहीं है, हट ही नहीं रहा। इनकी ताकत कम है, पत्थर की ताकत ज्यादा है। अब इन तीनों को सोच यहां से इतना बड़ी मुश्किल से अगर हम बच सकते हैं तो वो कौन बचाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। अब कैसे बचेंगे? अल्लाह ताला को कैसे बुलाया? अपनी नेक अमाल की वजह से बुलाया, नेक अमाल का वसीला दिया था। नेक अमाल अल्लाह ताला के यहां पेश किए थे। एक ने कहा था अल्लाह तेरी रजा के लिए वालिदैन की खिदमत किया करता था, अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। ये दूसरे शख्स ये बोला अल्लाह एक बदकारा औरत ने मुझे दावत दी थी बुराई की, तेरी रजा के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अल्लाह एक शख्स मेरे पास मजदूर था, अपनी उजरत मजदूरी को छोड़ के गया, मैं उसकी हिफाजत करता रहा, भारी भरकम और जम्मे गफीर उसका ये माल जमा हुआ, वापस आया, मैंने उसकी अमानत उसे लुटा दी है। अल्लाह मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया है, अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। तीनों अपने अमाल पेश कर रहे हैं, एक एक अमल, पत्थर हट रहा है। हदीस के अंदर यहां तक भी आता है कि ये पत्थर अल हाजतुल जाहिमा, ये पत्थर रेजा रेजा हो गया था। अमल के साथ एक अल्फाज ये भी आते हैं पत्थर रेजा रेजा हो गया था इन अमाल की वजह से। अब इस मुश्किल के अंदर, इस परेशानी के अंदर, ये दुनिया की परेशानी है, दुनिया की मुश्किल थी, मालूम हुआ, पता चलता है नेकी की वजह से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी नेकी का बदला दे देते हैं। नेकी का बदला मिला, बड़ी परेशानी और मुसीबत और तकलीफ थी, नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने इस परेशानी और तकलीफ से निजात दे दी है। नेकी का बदला अल्लाह ताला बासा औकात दुनिया में दे देते हैं, दुनिया खुश हो गई। आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर भारी भरकम पत्थर है जो हट नहीं रहे और हमें नेक अमाल करने से ये पत्थर आड़े आ चुके हैं, भारी भरकम पत्थर है, कभी खानदानी ये पत्थर है और कभी ये दौलत के पत्थर है, कभी इंसान की अना के पत्थर है और कभी ये शैतान के हमले के पत्थर है। ये भारी भरकम ये पत्थर ये आड़े आ चुके हैं, नेकी नहीं करने दे रहे। अगर चाहते हैं दुनिया खुश हो जाए, दुनिया अच्छी बन जाए, इन पत्थरों को नेकी करके रेजा रेजा करना पड़ेगा। इन पत्थरों को नेकी की वजह से अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये पत्थर नेकी की वजह से हट जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखा के जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अगर हमारी जिंदगी के अंदर पत्थर है इस किस्म से तो नेकी की वजह से वो हट सकते हैं। हम नेकी करने की वजह से उन्हें हटा सकते हैं रास्ते से, नेकी करने की वजह से हम उन्हें रेजा रेजा कर सकते हैं। और यकीनन हमारी जिंदगी में पत्थर बहुत मौजूद है, बहुत सारे पत्थर मौजूद है। कोई भी एक नाफरमानी या शरीयत के खिलाफ हम अमल कर रहा है तो उसे मैं पत्थर कह रहा हूं, उसे पत्थर कहा जाता है। कितना भारी भरकम पत्थर है जो हमें रोक रहा है, आगे नेकी करने की तौफीक और फुर्सत नहीं मिल रही। तो नेकी की वजह से हम अपने जिंदगी के अंदर पत्थरों को हटा सकते हैं। अगर बात समझ नहीं है तो चौथी बात देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये नाजिल होने वाला ये कुरान मजीद के अंदर दूसरे नंबर पे एक सूरत है, बड़ा काम का वाकया और कमाल का वाकया है, समझने के लिए बड़ा कमाल का है। इस नेकी की वजह से हम दुनिया के अंदर अपनी खुशगवार जिंदगी बना सकते हैं।
सिर्फ एक नेकी है, कैसे जिंदगी अच्छी हुई, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी। दूसरे नंबर पे सूरत है जिसका नाम सूरतुल बकरा है। बकरा अरबी के अंदर बकरतुल गाय को कहा जाता है। और इस सूरत का नाम बकरा क्यों रखा गया है? इस सूरत के अंदर गाय का जिक्र है, इस मुशाबत और इस वजह से इस सूरत का नाम बकरा रखा गया है, गाय की वजह से। अब इसके अंदर गाय का जिक्र क्यों है? बड़ा लंबा वाकया है, अपनी बात की तरफ ये तमहीद बांध के अपनी बात की तरफ आऊंगा। गाय का जिक्र क्यों है? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स था जो कि इब्ने हिबान के अंदर, अबी हातिम के अंदर और इब्ने कसीर के अंदर, तफसीर कुर्तुबी के अंदर, ये बाज और दीगर फतहुल कबीर के अंदर और फतहुल कदीर के अंदर, ये तफसीर की सारी किताबें, इनके अंदर ये वाकया दर्ज है जो सुना रहा हो। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, उसने अपने चचा को माल और दौलत हासिल करने की वजह से उसे कत्ल कर दिया। कहा मेरा चचा ये कत्ल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी जितना भी दौलत है ये अमीर है, इसकी औलाद तो है नहीं है, इस सारी दौलत का वारिस मैं बन जाऊंगा। अपने चचे को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जो उस इलाके के और उस वक्त के इन लोगों के जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों के इलाके के अंदर रात को और अपने चचे की लाश को ये फेंक देता है। जैसे सुबह होती है ये वावेला और शोर मचाना ये शुरू कर देता है और ये कहता है कि मेरे चचा को इन दुश्मनों ने, इन लोगों ने कत्ल कर दिया है, मुझे इनसे दियत चाहिए। और कत्ल भी कर दिया खुद और विरासत का ये मालिक भी बन चुका है और उन लोगों से दियत भी तलब कर रहा है, दियत भी मांग रहा है, मुझे इसकी उजरत और इसका इवज़ दिया जाए, मेरे चचा को उन्होंने कत्ल किया है। अब ये सारे के सारे लोग जमा होके मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के पैगंबर के पास गए, कहते हमने इस शख्स को और इस नौजवान के चचा को हमने कत्ल नहीं किया है, ये हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है, हमने इसे कत्ल नहीं किया है। मूसा अलैहिस्सलाम से ये लोग कह रहे हैं अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह ताला आपको बता दे इस शख्स को किसने कत्ल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। दुआ करने के बाद आसमान से ये कुरान बन के नाजिल हो गया। कुरान इस अंदाज में कि इन्हें कह दे, जो ये बात लेके आए हैं इन्हें आप कह दे कि एक गाय ले, उस गाय को ज़िबा करे, ज़िबा करने के बाद गाय के गोश्त का एक टुकड़ा ले और इस मुर्दे के जिस्म के साथ लगाए, ये जिंदा हो जाएगा। जिंदा होने के बाद ये खुद बताएगा मुझे किसने कत्ल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये कुरान नाजिल हो गया। कुरान नाजिल होने के बाद, उस वक्त ये बात नाजिल होने के बाद, जो शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त थी, तौरात के अंदर ये बात आ गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया। लोगों ने फिर आगे सवाल करना शुरू कर दिए, सवाल करना शुरू कर दिए कि वो किस अंदाज में गए हो, युबय्यिन लना मा ही, वो किस अंदाज में गए हो, वो कैसी गए हो, आगे चलते हुए उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो, हल चलाने वाली हो न चलाने वाली हो, रंग उसका ज्यादा हो कम हो, किस अंदाज में हो, बकरा हो या वो ये यसरब हो, शादीशुदा हो, किस अंदाज में हो वो गए। सवाल करते गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर ये बात नाजिल करते गए। एक वक्त ऐसा भी आया, ये लोग तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब गाय को ये तलाश कर रहे हैं कि ये सारी खूबियां जो अल्लाह ताला ने बताई हैं मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से, अब इस गाय को हमने तलाश करना है। एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चलते हुए ये ढूंढ रहे हैं, गाय नहीं मिल रही जिसके अंदर ये सारी खूबियां मौजूद हो। चलते हुए एक घर के अंदर जाके देखते हैं सारी की सारी खूबियां इस गाय के अंदर मौजूद हैं और ये गाय इस बंदे की एक ही गाय है, इसके अलावा दूसरी इसकी गाय ही नहीं है। जिस बंदे के और जिस नौजवान के घर के अंदर ये गाय मौजूद थी, अब यहाँ पे रुक के जरा सा उस बंदे का तारुफ भी हो जाए जिसके घर के अंदर ये गाय मौजूद थी। इतना खूबियों के बावजूद, इतना लंबा अरसा तलाश करने के बावजूद क्या वजह थी ये गाय इस बंदे के घर के अंदर मौजूद थी? यकीनन कोई वजह तो होगी जो गाय इतना लंबा सफर करने के बाद और सारी खूबियां
इसी गाय के अंदर मौजूद है, वो एक ही गाय इस नौजवान के पास है। इस नौजवान की यकीनन कोई खूबी तो होगी, यकीनन इसकी खूबी है। क्या खूबी है? फिर इस वाक्य की तरफ आएंगे, उस बंदे का तारुफ हो जाए। अब ये नौजवान कौन है जिसके घर के अंदर गाय मिली है? ये वो शख्स है चलते हुए। एक वक्त ऐसा भी आया था, इस नौजवान के वालिदैन जिंदा थे। इस नौजवान के वालिदैन जिंदा थे, जिसके घर के अंदर गाय मिली है, वालिदैन जिंदा है। बाहर चलते हुए, जैसे आप देखते हैं माशरे के अंदर कोई लोग ठेले के ऊपर चीजें रख के फरोख्त कर रहे होते हैं, आवाज लगा रहे होते हैं। अपने घर से बाहर निकलता है एक शख्स, चीजें रख के बेच रहा है, आवाज लगा रहा है। इस नौजवान को चीज लेने की तलब हुई, ये बाहर निकलता है। बाज मुफस्सिरीन ने यहां तक भी लिखा है वो शख्स जो बेच रहा था, आवाज लगा रहा था, वो हीरे बेच रहा था, हीरे की आवाज लगा रहा था। ये शख्स बाहर गया, उससे पूछता है हीरे की क्या कीमत है? मुझे एक हीरा चाहिए, इसकी कीमत क्या है? ये नौजवान जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है, ये दोनों आपस में हीरे की कीमत तय कर रहे हैं। ये घर से निकलने वाला नौजवान उससे हीरे की कीमत पूछ रहा है, बेचने वाला कीमत बता रहा है। इस वक्त मौजूदा करेंसी के मुताबिक उसकी कीमत 70,000 थी। कहा इसकी कीमत 70,000 है और ये 70,000 से इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। इस नौजवान ने कहा ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है, लेकिन आपको एक शर्त है, इंतजार करना पड़ेगा, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा और आप ये चले जाना, पैसे लेके मुझे हीरा दे देना। उसने कहा क्यों? कहा मेरे वालिद सोए हुए हैं, नौजवानों के लिए जरूरी है, मेरे वालिद सोए हुए हैं, नींद कर रहे हैं, आराम है। शायद के ये चाबी खजाने की वालिद के पास थी या ये पैसे दिरहम व दिनार वालिद की जेब के अंदर थे। ये नौजवान कहता है आप यहाँ रुके, जब तक मेरे वालिद बिदार नहीं होंगे उस वक्त तक आप इंतजार करते रहे। ये बेचने वाला शख्स कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, चलती अपने पैसे ले और मुझसे ये हीरा लेके जा। ये कहते हैं नहीं, आप रुक जाए, मेरे वालिद आराम कर रहे हैं, मैं उनके आराम के अंदर खलल पैदा नहीं कर सकता, आप रुके, मैं आपको 70,000 की बजाय 80,000 इसकी कीमत दूंगा, लेकिन आप मेरी शर्त पे रुके। ये नौजवान जो बेचने वाला है ये कहता है नहीं, अभी जाके ये पैसे और चीजें आप लेके आओ, मैं आपको 70,000 की बजाय 60,000 में दूंगा, आप अभी लेके आओ। जैसे ये शख्स कहता गया, ये कीमत बढ़ाता गया, रुकने की, वो जाने की कीमत कम करता गया। बात यहां तक पहुंची, ये बेचने वाला कहता है अभी पैसे लेके आ, मैं तुझे 70,000 की बजाय 60,000 की बजाय तुम्हें मैं 30,000 में दूंगा, अभी पैसे लेके आ। ये नौजवान कहता है नहीं, आप रुके, मैं आपको 70-80 की बजाय 1,00,000 रुपए मौजूदा करेंसी के मुताबिक तुम्हें दूंगा, आप रुके। इतना कीमत बढ़ा के लगा दी इसने। लेकिन ये बात पै तकमील तक नहीं पहुंची, पै तकमील तक बात नहीं पहुंची। ये बेचने वाला शख्स गुस्से में आके ये चला गया, हीरा उसी के पास रहा, इसने खरीदा ही नहीं। क्यों? इसका वालिद आराम कर रहा था, वालिद के आराम के अंदर इसने खलल पैदा करना मुनासिब ही नहीं समझा और ये अपनी मनपसंद को छोड़ दिया। वालिद के आराम के अंदर खलल पैदा नहीं किया और इतना भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार हो गया, रकम देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वालिद के आराम के अंदर खलल नहीं पैदा किया। बंदा ये चला गया। आखिरकार ये वक्त आया, यही वालिद वापस अपनी बात पे आते हैं। यही नौजवान है, वो गाय लेने के लिए, देखने के लिए आए हैं। अब इस बंदे की नेकी है, अपने वालिदैन के साथ इतना उनकी खिदमत, अदब व एहतराम, हुस्न सलूक करने वाला है, उनकी नींद का भी ख्याल करता है, उनके आराम का भी ख्याल करता है, उनके सुकून का भी ख्याल करता है। ये सुकून का ख्याल करना अल्लाह ताला को ये नेकी इतना पसंद है, ये नेकी इतना पसंद है, इतना अजीम नेकी लगी, इसने अपनी मन पसंद छोड़ दी, लेकिन वालिदैन के आराम के अंदर खलल पैदा नहीं किया। ये नेकी अल्लाह ताला को इतना पसंद है। ये लोग आए हैं गाय लेने के लिए, अब इसका वालिद फौत हो चुका है,
जिस वालिद का ये अदब एहतराम करता था वो वालिद फौत हो चुका है। अब इस इंसान के घर के अंदर फक्र फाका है, फक्र फाका की इंतहा है। खाने के लिए मुहद्दिसीन ने लिखा है, इब्ने कसीर के अंदर, तफसीर कुर्तुबी के अंदर, इस बंदे के पास खाने के लिए कई दिन हो चुके थे, एक लुकमा भी नहीं था जो अपनी माँ और अपने पेट के अंदर ये डाल ले। दोनों ही माँ और ये बच्चा इस घर के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा इन लोगों को, जाओ गाय के अंदर ये खूबी है, इस गाय को तलाश करके ले आओ। ये लोग आए और इस नौजवान को पता चला इस पूरे इलाके के अंदर एक ही गाय है और इन लोगों ने इस गाय को खरीदना है। मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस शख्स ने कहा है इस गाय के ऊपर ये जितना भी खाल है, इस खाल को भर के मैं सोना लूंगा, फिर इस गाय को बेचूंगा। बाज मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है, एक तराजू के अंदर सोना रखा गया, दूसरे तराजू के अंदर गाय को रखा गया और इस गाय के वजन के बराबर इसने सोना लिया और इस गाय को दिया है। अब अंदाजा लगाए, अपने वालिद की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कितना बड़ी नेकी दे दी, कितना बड़ा सिला दे दिया, कितना बड़ा अजर दे दिया। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी नेकी का सिला देते हैं, इतना देते हैं बासा औकात इंसान की दुनिया ही तब्दील हो जाती है, इंसान की रंगत ही तब्दील हो जाती है और इंसान की ये सोई हुई दुनिया ये जाग जाती है और ये खंडरात वाला घर ये बहार बन जाता है। वजह क्या है? अगर हम चाहते हैं हमारे घर के अंदर ये बागात लग जाए, हमारे घर के अंदर सारी चीजों की फरावानी हो, नेकी करने की वजह से इंसान ये सारी चीजें अपने अंदर पैदा कर सकता है। बाज़ औक़ात नेकी की वजह से अल्लाह ताला इंसान को इतना दे देते हैं कि इंसान को खुश कर देते हैं। अगर बात समझ नहीं है, आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र और खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरत कहफ के अंदर मौजूद है। बड़ा लंबा वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों चलते हुए एक बस्ती के अंदर दाखिल होते हैं। बस्ती वालों से खाना तलब करते हैं। वाक़या आपने सुना है, बस्ती वालों से खाना तलब करते हैं, खाना देने से इनकार कर देते हैं, कहे हमारे पास खाना नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, मैंने देखा ये दीवार घिर रही है। वअम्मल जिदारु फकान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। देखती है दीवार गिर रही है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, तुम मजदूर, मैं मिस्त्री हूँ, इस दीवार को घिरा के हम ठीक करेंगे, इस दीवार को घिरा के ठीक करेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया और आप इनकी दीवार ठीक कर रहे हैं, वो दीवार जो गिर रही है। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कर रहा हूँ। दीवार को ठीक कर दिया, दीवार को बढ़ा दिया है। अब दीवार की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों करवा रहे हैं? एक दो वक्त के पैगंबर है, अजीम शख्सियत है, इन दोनों को मिस्त्री और मजदूर अल्लाह ताला ने बनाया है और बिना उजरत के, बिना लॉस हो के इस दीवार को ठीक कर रहे हैं। इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खजाने को बचाने के लिए, क्यों आप अंदाजा लगाएं, इस बस्ती के लोग इस कदर ये सख्त दिल है, खाना देने के लिए पूरी बस्ती में से कोई एक शख्स भी नहीं था जो इन दोनों मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना खिला दे। आप इनकी हसीयत तो यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं। अगर इनको पता चल जाए इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, ये सारा खजाना निकाल लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खजाने की हिफाजत करवा रही है दो अजीम लोगों से। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी हिफाजत की? आगे फरमाते हैं, इसकी हिफाजत इस वजह से अल्लाह ताला ने करवाई है, वकान अबूहुमा सालिहा, यतीम बच्चे जो है इनके वालिदैन, वकान अबूहुमा तस्निया का सीगा है, वकान अबूहुमा, दोनों इन यतीम बच्चों के बाप और इसकी वालिदा दोनों नेक साले थे। इस वजह से हमने इस खजाने की हिफाजत की है। पता चलता है अगर वालिदैन नेक हो तो नेकी का सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की सूरत में भी दे देता है।
اللہ رب العالمین نیکی کا صلہ اولاد کی صورت میں بھی دے دیتا ہے، اولاد کو بھی نیکی کا صلہ مل سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ والدین کا نیک ہونا ضروری ہے، بندے کا نیک ہونا ضروری ہے، بندے کا اعمال صالح کرنا ہونا ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کو نیکی کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نیکی کا بدلہ انسان کو دے دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انسان کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتے۔ اور نیکی تب کرنی ہے بنا لوس ہو کے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے نیکی کی ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی انہوں نے کھانا نہیں دیا پھر بھی نیکی کر رہے ہیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بے لوث ہو کے ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، اگر نیکی بے لوث ہو کے کرے گی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی اس کے اندر واپس اجرت کی کوئی بھی شش و پنج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دے سکتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی انسان کو نیکی کا بدلہ تو ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دینے پہ قادر ہے۔ آپ نے دلائل سنے ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں، وقت پورا ہو چکا۔